Good afternoon, everyone. So today we are going to continue the chapter. Which chapter we are learning? We are learning presentation of data, right? So in this chapter, we have already done the sums of doing quantitative data, classification of quantitative data. You already know what is quantitative data, right? What is quantitative data? All those data which are containing numbers, right? So quantitative data, it can be presented in which form? It can be presented in It can be presented in discrete form, or it can be presented in continuous form. Yes, discrete form when the area of the data is not so big. If it is small area, then we use which data? We use the form of discrete. Okay, the discrete form is used when the range of the data is not big, it is small, right? But when the range of the data is large, we have to use continuous form, right? And what do you mean by continuous data? When the data which are containing classes, we called it as continuous data. Now continuous frequency distribution can again be divided into two parts. Which is it? Inclusive frequency distribution, and the other one is exclusive frequency distribution. So this is what? This is classification. This is the classification of what? This is the classification of quantitative data. Yes, this is the classification of quantitative data. So this is the classification of what? This is the classification of quantitative data, all those data that is having numbers. But what about all those data which does not contain numbers? Do you have some data which do not contain numbers, which have verbal data? What do we call that data as? We call that data as qualitative data. We call the data as qualitative data, and now we are going to learn how to present this qualitative data. How, if the qualitative data is given to you, उसको भी आपको अच्छे से classify करना पड़ेगा, जिससे it becomes understandable to the person who is using that data, right? So now what we have to do? We have to use this data to do classification in such a manner that it is easily representable, it is easily understood. ठीक है? We'll start with a very basic example and we'll go on continuing it. ठीक है? The first example that is given to you is question number 18. Can you see? We'll see the data what is given on the basis of the so and so study. एक अहमदाबाद का कोई branch bank है, उसके बारे में information देके रखा है. There are 20 security personnel, 30 peons, 40 clerks, 8 managers in a bank. So a city is given. The name of the city is Ahmedabad city, और उस city में बहुत सारे cooperative banks होंगे. तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स में से मैनेजर्स कितने हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने हैं, क्लर्क्स कितने हैं, उसका डेटा आप लोगों को दिया गया है. नाउ यू हैव टू क्लासिफाई दिस डेटा. सी इफ इट इज गिवन, ये मैनेजर्स है, प्यून्स है, सिक्योरिटी वाले लोग हैं. एक बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं ना, राइट? तो इसमें क्लासिफिकेशन दिया है एक अहमदाबाद सिटी का, जहां पे अलग कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसके जो सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने हैं, क्या बोलते हैं, मैनेजर्स कितने हैं, प्यून्स कितने हैं, इसके बारे में डेटा दे के रखा है. यू हैव टू मेक अ सिंपल क्लासिफिकेशन. उसमें ऐसा नहीं बोला है उनकी, ना उनका जेंडर मेंशन किया है, ना उनका एजुकेशन मेंशन किया है, कुछ नहीं मेंशन किया है, सिर्फ नंबर दिया है. कैन यू सी? इट इज गिवन दैट देयर are 20 security personnels. When it is no further information is given about this, so what we can do is we will make a simple classification where we will write the designation and we will write the number of persons. कितने लोग हैं, ठीक है? The first, what was written? 20 security personnel. So designation, security personnel कितने हैं? There are security personnel. How many? 20. Then we have 30 peons. So how many peons we have? 30 peons we have. Then we have clerks. How many clerks we have? Can you tell me the clerks? Yeah, we have 40 clerks. Then there is managers. There are 8 managers. Total is
98. अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, कुछ ज़्यादा डेटा आपको देकर नहीं रखा है. मैनेजर मेल है, फीमेल है, प्यून जो है वो मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है. वी डोंट हैव एनी डेटा. इट जस्ट अ सिंपल नंबर इज गिवन. हमने क्या किया, इसको हमें पढ़ना पड़ रहा था. अब ये देख के आपको तुरंत समझ में आ रहा है. अगर आप पूछो प्यून कितने हैं, सिक्योरिटी पर्सनल कितने हैं, तुरंत जैसे आपने डेटा देखा आपको तुरंत समझ में आ गया. आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी. समझ में आ रहा है. तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एंड वी आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन सच दैट इट बिकम्स इजीली रिप्रेजेंटेबल टू whosoever sees it. इफ मैंने देखा तो मेरे को तुरंत से समझ में आ गया, आपने देखा आपको भी समझ में आ गया. तो हम इसको इजी बनाने के लिए किसके फॉर्म डाल रहे हैं, टेबल के फॉर्म में, जिससे वो इजीली रिप्रेजेंट हो सके. अब इसी डेटा को हम लोग कंटिन्यू करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं. विल सी द सेम क्वेश्चन इज गिवन टू यू बट अ लिटिल डिटेल्ड मैनर. ठीक है. अब क्या बोला है कि इन दिस बैंक 20 एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी. जो सिक्योरिटी में 20 लोग काम कर रहे थे ना, उसमें ऐसा बोला है कि वो 20 लोगों में से 6 जो है ना वो फीमेल्स थी. 6 जो है वो फीमेल्स थी. अगर 20 में से 6 फीमेल थी तो मेल कितने होंगे? इट इज वेरी क्लियर. 20 minus 6 that is 14 will be male. Yes or no? Yes. There were 30 peons and out of 30 peons 10 were females. So here it was 10 were female तो 20 were male. 40 were clerks and 40 clerks में से 25 were females. Then how many were the male? 15 male were there. And from 8 managers 3 were female. तो बच्चे कितने? 5 is male. Yes. समझ में आया. पहले क्या था, सिर्फ डेजिग्नेशन दिया था. अब जो लोग मैनेजर है उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. सिक्योरिटी मेल कितने हैं, फीमेल कैसे हैं. तो उसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. वी हैव टू रिप्रेजेंट सेम इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. व्हाट वी विल डू, अगेन सेम लिखेंगे. क्या लिखेंगे? डेजिग्नेशन लिखेंगे. चलो अब यहां पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो थे उसमें क्या आएंगे, मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे. राइट. तो वी विल बी हैविंग मेल ऑल्सो एंड वी विल हैव फीमेल ऑल्सो एंड हियर वी विल हैव टोटल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. सबसे फर्स्ट डेजिग्नेशन कौन सा था? वी हैड 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल. 20 टोटल है. सिक्योरिटी का टोटल कितना है? 20. और उसमें से 6 वर फीमेल्स. तो फीमेल के कॉलम में कितना लिखोगे? 6. मेल के कॉलम में? वेरी गुड. नेक्स्ट इज व्हाट? प्यून. हाउ मेनी प्यून्स वी हैव? 30. टोटल के कॉलम में कितना लिखो? 30. प्यून्स में से 10 वर फीमेल्स. फीमेल के कॉलम में लिखना है 10, तो मेल के कॉलम में? आर यू गेटिंग दिस? यस. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. आफ्टर प्यून्स whom do we have? We have clerks. How many clerks we have? We have 40 clerks. Out of 40 clerks we have 25 females. Female में 25 आएगा तो 15 मेल में आ जाएगा. And the last one is managers. How many managers we have? 8. We have 8 managers and from these 8 managers it is told that 3 is female तो 5 is what? मेल. टोटल कितना था? 98. इसका टोटल कर दो एंड इसका टोटल. ये है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. पहले हमने पढ़ा सिंपल क्लासिफिकेशन. कुछ डेटा ज़्यादा दिया नहीं था, बस जो लिखा उसके बाजू में नंबर्स लिखते. सिंपल था. अब ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. अब ऐसा भी हो सकता है ये जो मेल दिया है ना 14 मेल, कुछ मैरिड होंगे कुछ अनमैरिड होंगे. वैसे ही जो फीमेल्स दी है कुछ मैरिड होगी अनमैरिड होगी. तो आगे ऐसा हम करेंगे जहां पे और ज्यादा क्लासिफिकेशन दिया है जिसको हमको रिप्रेजेंट करता है इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल. We'll move forward. Chalo. Again, moving to the same example, the data is almost same, but we have a more detailed discussion over here where male will be further divided into married, unmarried. Again, female will be further divided into married, unmarried. Okay? तो same यही वाला डेटा, लेकिन इसमें और 2 कॉलम आएंगे. ये मेल तो आएगा ही, लेकिन मेल में क्या आएगा? Married, unmarried, total. Married, unmarried, total. Married, unmarried, total. Shall we start doing this now? ओके. अगेन क्या बनेगा? सबसे पहले इस साइड क्या आएगा? डेजिग्नेशन आ जाएगा. ठीक है. विल राइट मेल, विल राइट फीमेल एंड हियर इट इज टोटल. मेल इज व्हाट? मैरिड
अनमैरिड, टोटल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल, मैरिड, अनमैरिड, टोटल। चलो डेटा कहां से शुरू हो रहा है? इन अ बैंक 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल। सबसे पहले कौन दिया है? सिक्योरिटी पर्सनल इज गिवन टू यू। इन अ बैंक 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल। मुझे बताओ ये 20 टोटल है? सिक्योरिटी पे कितने लोग हैं? 20, ना मेल ना फीमेल, नहीं, टोटल 20 है। माने टोटल का टोटल कितना है? 20। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। 20 वर्किंग एज सिक्योरिटी, 7 मेल्स आर मैरिड एंड आउट ऑफ 6 फीमेल 4 आर मैरिड। 20 एम्प्लॉइज वर्किंग एज सिक्योरिटी पर्सनल, 7 मेल आर मैरिड। मेल में मैरिड कितने हैं? 7 मेल आर मैरिड, ठीक है। उसके बाद 6 फीमेल्स आउट ऑफ 6 फीमेल्स, माने फीमेल्स कितनी थी? 6 फीमेल थी, उसमें से 4 आर मैरिड। फीमेल 6 थी, उसमें से मैरिड कितनी है? 4। तो अनमैरिड कितनी होगी? सबको इतना क्लियर हो गया? चलो अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 20 माइनस 6 दैट इज 14। और अगर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो 14 माइनस 7 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। नाउ 7 प्लस 4 हियर इट विल बी 11 and 7 plus 2 here it will be 9। तो 11 plus 9 20। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया सबका? yes or no? yes। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट लाइन क्या दिया है? प्यून। सी द डेटा ऑफ प्यून। 12 प्यून्स आउट ऑफ 20 मेल प्यून्स आर मैरिड। मेल प्यून्स कितने हैं पहले मुझे बताओ? 20 मेल प्यून्स है और उसमें से 12 जो है वो मैरिड है। अगर 12 मैरिड है तो अनमैरिड कितने होंगे? सबको समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। आर मैरिड एंड 10 फीमेल प्यून्स आर अनमैरिड। अनमैरिड फीमेल प्यून्स कितनी है? 10 फीमेल प्यून्स आर अनमैरिड। अगर यहाँ पे अनमैरिड के बारे में और कुछ, मैरिड के बारे में और कुछ नहीं बोला है, तो मैरिड कितनी होंगी? 0। यहाँ पे कितना आएगा टोटल? 10। 10 प्लस 20 30। 12 plus 0 will be 12 and here 10 plus this will be 18। Second line is clear to everyone? Yes, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्यून हो गया। प्यून के बाद कौन दिया है? क्लर्क। क्लर्क आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, टोटल क्लर्क्स कितने हैं? Should I write over here 40 clerk? Yes, out of the 40 clerks 25 were female and out of them 12 were married। ये 40 में से फीमेल कितनी थी? 25 फीमेल थी और 25 में से 12 जो थी वो मैरिड थी। अगर 12 मैरिड थी तो 13 अनमैरिड थी, ठीक है। Whereas 5 male clerks were married and out and 5 male clerks were married। तो मैरिड में क्लर्क्स कितने आएंगे? मेल क्लर्क्स जो मैरिड है, कितने क्लर्क्स हैं जो मैरिड है? 7 मेल क्लर्क्स मैरिड हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 40, यहाँ पे 25। 40 माइनस 25 विल बी 15। यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा 8। चलो 8 प्लस 12 इट विल बी 19 and 8 plus 13 will be 19 and 21 40 हो गया। थर्ड लाइन भी क्लियर हो गया। चलो अब लास्ट क्या बाकी है? वी आर डन विथ क्लर्क, राइट? नाउ ऑल द फीमेल मैनेजर्स वर अनमैरिड। लास्ट में बच गया कौन? मैनेजर्स, ठीक है। व्हाट इज गिवन अबाउट मैनेजर्स? लेट्स सी। इट इज गिवन दैट ऑल द फीमेल एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर्स, मैनेजर्स टोटल है कितने? 8 मैनेजर्स हैं एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर्स ऑल द 3 फीमेल्स वो अनमैरिड। फीमेल कितनी थी? 3 थी और तीनों की तीनों क्या थी? अनमैरिड थी, ठीक है। फीमेल 3 थी, तीनों अनमैरिड थी, तो मैरिड वाली कोई नहीं थी। टोटल हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। एंड ऑल द मेल मैनेजर्स एंड ऑल मैनेजर्स मेल मैनेजर्स वर मैरिड। तो जो भी मैनेजर्स मेल के बचे, कितने मैनेजर्स बचे? और सारे अनमैरिड थे, सारे मैरिड थे। तो मैरिड के कॉलम में क्या लिखोगे? 5। यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो गया हमारा 8। नीचे लिख दोगे टोटल, सारे को टोटल कर देंगे और यहाँ पे भी आ जाएगा इसका टोटल।
अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट डिड वी लर्न? मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हमने सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ा. लेटर ऑन व्हाट वी स्टडीड? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से. ठीक है, एक क्लासिफिकेशन के अंदर और क्लासिफिकेशन था, तो वैसे टाइप के सम्स हमने किए. ठीक है, समझ में आए सबको? ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास.